everyone, I am Anshul Sharma, your biology teacher, and in this video tutorial we are going to discuss about the remaining assisted reproductive techniques. They are the ARTs. As you know, some of the ARTs we have discussed in the previous video. Now we are going to discuss the some remaining ART techniques. We are dealing with the question of infertility, that is the inability of a person to have children, to reproduce the children. That means the person is infertile, cannot produce the offspring, and this infertility can be treated, or the couples that are suffering from infertility, they can be assisted to have childs with the help of some of the techniques, and these techniques are known as ART techniques, or assisted reproductive technologies. We have discussed about the IVF technology, in vitro fertilization technology, and embryo transfer technology in the previous video. Now we are going to discuss the remaining techniques. The next technique is the gamete intrafallopian transfer. That means the transfer of gamete into the fallopian tubes. Now imagine a female who cannot produce the egg. वो एग तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल इट हैज़ द कंडीशंस इन विच द फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस, इम्प्लांटेशन कैन टेक प्लेस, एंड प्रेगनेंसी कैन टेक प्लेस. दैट मीन्स शी इज़ ओनली अनेबल टू प्रोड्यूस द एग. वो सिर्फ एग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, अदरवाइज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली, एंड दैट इज उसमें फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, और गेस्टेशन भी हो सकता है. दैट मीन्स दिस फीमेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवा. दैट मीन्स इट इज़ अनेबल टू रिप्रोड्यूस. दैट मीन्स शी इज़ इनफर्टाइल, and this infertility of this female can be treated with the help of gamete intrafallopian transfer. करते क्या है? In this case, from a donor female the egg is taken, and then this egg is transferred to the fallopian tube of this infertile female. When the egg is transferred, then semen is also discharged into the reproductive tract of female. The ova taken from the donor female is in the fallopian tube that fertilized with the sperms, and then because this female is able to provide the further conditions so this female can have the child. So this is the technique that is known as gamete intrafallopian transfer. The next technique is the intracytoplasmic sperm injection. Now consider a male, एक ऐसा मेल जिसके स्पर्म्स डिस्चार्ज हो रहे हैं इजैकुलेशन के दौरान, वो ठीक से मूव नहीं कर पा रहे हैं. एंड एज यू नो, स्पर्म्स को मूव करना होता है वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब. एंड स्पर्म्स इफ दे आर अनेबल टू मूव, देन इन दैट कंडीशन द स्पर्म्स आर अनेबल टू फर्टिलाइज, एंड दैट मेल इज इनफर्टाइल. सो इस केस में हम क्या करते हैं, इस तरह के मेल को असिस्ट करने के लिए डॉक्टर्स करते हैं, उसके सीमन से स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं, एंड देन दैट दोज स्पर्म्स विद द हेल्प ऑफ ए इंजेक्शन आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एग. एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस. स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एग, एंड देन स्पर्म फर्टिलाइज द एग. जो तो स्पर्म मूव करके नहीं जा पा रहे थे, उसको हमने इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली एग के साइटोप्लाज्म में पहुंचा दिया है. दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द मेल्स स्पर्म्स आर अनेबल टू मूव प्रॉपरली. The next ART technique is the artificial insemination. Insemination, that is the process of discharge or release of semen into the reproductive tract of female. If it is done with the help of penis, that is the natural insemination. But अगर penis के अलावा किसी और medium के through insemination होता है, तो that will be regarded as the artificial insemination. So consider a male partner. एक ऐसा male partner consider कीजिए जिसमें या तो sperm count बहुत low है. You know, millions of sperms are required for the successful fertilization. अगर उनकी संख्या कम होगी तो मेल वुड नॉट बी एबल टू सक्सेसफुली फर्टिलाइज द फीमेल. सो या तो मेल का स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो है, एंड फॉर द प्रॉपर इंसेमिनेशन द इरेक्शन ऑफ पेनिस इज रिक्वायर्ड, एंड देयर इज अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन व्हेन द मेल इज अनेबल टू प्रॉपरली इरेक्ट इट्स पेनिस. प्रॉपर इरेक्शन पेनिस में नहीं होता, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन. और अगर प्रॉपर इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं होगा तो द मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल. सो दीज आर द टू कंडीशन. आइदर द मेल इज हैविंग प्रॉपर इरेक्शन बट द स्पर्म काउंट इज लो, or either the male is having the erectile dysfunction. Due to this, the penis erection is not there, and that is why male is unable to inseminate the female. इन दोनों ही कंडीशन में क्या किया जा सकता है? If the sperm count is low, then यहाँ पे तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. तो इस केस में क्या होता है, एक डोनर मेल से सीमन कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड देन दैट सीमन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल, and then female get the fertilized and conceive the child.
But if the patient is having the erectile dysfunction condition, so in that condition it is producing the proper amount of semen but unable to discharge the semen into the reproductive tract of female, सिर्फ इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में इसी पेशेंट का सीमेन कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर इस सीमेन को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब इंट्रोडक्शन के लिए हम सीमेन को वेजाइना में भी इंसेमिनेट करा सकते हैं और उसके यूट्रस में भी इंसेमिनेट करा सकते हैं। सो इफ़ द कलेक्टेड सीमेन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना, दैट इज नॉर्मल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एंड इफ द कलेक्टेड सीमेन is introduced into the uterus of female, then that kind of artificial insemination is called intrauterine insemination. In this video and previous video we have discussed about the different ART techniques, but जितनी बार भी हमने इनको डिस्कस किया है, sperm injection inside the egg, कलेक्टिंग द एग फ्रॉम द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सारी ऐसी प्रोसेस है जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज डॉक्टर, स्किल्ड डॉक्टर और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड दैट इज़ दीज ऑल टेक्निक्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी इनफर्टाइल कपल, एंड दैट इज़ वाई इनकी जो अप्रोच है अभी भी कोई केवल सोसाइटी के जो रिच वर्ड क्लास है वहीं तक है। दैट इज़ वाई एवरी कपल इन इंडिया कैन नॉट यूज़ दीज टेक्निक्स। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में अफोर्डेड चिल्ड्रंस हैं, अनाथ बच्चे हैं, तो इस टेक्निक्स का यूज़ अगर नहीं कर पा रहे हैं इनफर्टाइल कपल एंड दे वांट्स टू हैव द चाइल्ड, सो दे कैन लीगली अडॉप्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द सोसाइटी। तो इस तरीके से उन अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे और माँ बाप जो इनफर्टाइल माँ बाप हैं उनको बच्चे मिल जाएंगे। सो दिस कुड बी ए बेटर अल्टरनेटिव इफ़ द कपल इज़ अनेबल टू use these ART techniques due to the financial problems. So this is all about the ART techniques and infertility. We will discuss about the further topics in the next video. Thank you very much for watching the video.